Now, ladies and gentlemen, whenever we hear these two words, Saas and Bahu, in the Indian entertainment space, we tend to feel that they don't get along really well with each other, don't they? What exactly is the point of a relationship when it's not sweet and spicy at the same time, right? When we say sweet and spicy, can you remember your pickles, achar, ladies and gentlemen? Well, to continue the same, may I please welcome on stage Mansi Darbar, Media and Entertainment Advisor. She will be joined on stage by the amazing team of Saas Bahu Achar Private Limited. I would like to welcome them one by one on stage. Anup Soni, Indian actor and anchor. Amruta Subhash, Indian actress. Anjana Sukhani, Indian film actress and model. Yamini Das, Indian film actress. Thank you so much. Over to you. Check. Welcome to India Web Fest Season 4 by none other than IWM Buzz. Please give a big round of applause. आज हम यहाँ पे इस मंच पे एक बहुत ही पावरफुल शो के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ बहुत अच्छे कलाकार, किरदार और कहानी ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग, पावरफुल मैसेजेस हैं, such as, financial independence of women, women education, entrepreneurship, karma versus destiny, etc., etc. So, without wasting much time, let me introduce you to the lovely team and cast of Saas Bahu Achar Private Limited, produced by TVF, streaming on ZEE5. Here with me, and please give them a second round of applause. तो मैं सबसे पहले आप सबका यहाँ पे स्वागत करती हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस. और मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि आप थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में प्लीज़ बताएं, यहाँ पे हमारी ऑडियंस को जो बैठी हुई है. Hi everyone, it's great to be here. About my character, सुमन श्रीवास्तव, जो शुरुआत में तो दिलीप जी की बीवी रह चुकी है, but some things happened and she's now on her own. और वो खुद का एक बिजनेस शुरू करती है. उसको एक ही चीज़ आती है, जो है अचार बनाना. She doesn't know anything else. She's but उनके बच्चों की कस्टडी अपने पति के साथ है. She wants the custody back and she starts this business along with her mother-in-law, played amazingly well by Namni, Yamini Das. So whether she succeeds or not is the story of Saas Bahu Achar Private Limited. And the best part of this character is it starts with getting back the custody of her children, but it goes beyond it. It goes towards her own journey towards herself. And that's the best part of it. मुझे ऐसे लगता है कि हर औरत के लिए शुरुआत तो होती है कि अपने बच्चों के लिए करो, अपने पति के लिए करो, अपने घर के लिए करो. But sometimes it has to come back to your own self, खुद के लिए करो. And eventually that story comes to that, and that's the best part of Suman's character. That's what I think. यामिनी जी. मेरा कैरेक्टर फिल्म में दिलीप, अनूप जी की मदर और अंजना और इनकी सास का है. और जैसे घर की हर बुज़ुर्ग औरत होती है, वो चाहते हैं कि पूरी फैमिली में एक बैलेंस रहे, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं हो, सब बराबर चले, कोई छोटा बड़ा नहीं रहे, और जो कमज़ोर हैं उसको थोड़ा स्ट्रेंथ मिले, एम्पावरमेंट हो. तो मेरा कैरेक्टर यही है. बच्चों को भी देखना है, बहुओं को भी देखना है, बेटे का भी ध्यान रखना है, और जो कमज़ोर है उसको आगे बढ़ाना है.
Hi, this is Anjana Sukhani, and thank you for having us. Waited to be here for a very long time now to be called on stage and speak about Saas Bahu Achar. I play a character of a woman called Manisha. It's her second marriage. The first one didn't work out, and she has a child. And she gets remarried to Anoop's character in the film. And it's a very layered, complex character, as I have lived through it. The main issue, I think, with her is the acceptance of the house that now she's married into. तो वहाँ पर उसको वो प्यार, सम्मान, अपनापन, वो acceptance नहीं मिल पा रहा है, which she's been really waiting to, feel that love from her mother-in-law. And also she has a child herself, but there are 2 children of Anoop in the same house. So it's a very dynamic relationship between her with her mother-in-law, with her husband, with her own child, and the children who already are in the house. I think for me, actually, it's been a very, very challenging, emotionally part to have played. But very, very fortunate that I did. And like we were discussing, we'll talk about that, I know. But the way we were discussing that, there is never one dimension that a woman goes through. There are multiple layers in everything that she does. Just जैसे अमृता ने कहा कि आप सिर्फ अपना ही नहीं सोचते, और अदर एक औरत होती है जो अपने बारे में सबसे लास्ट सोचती है. वो पहले अपने घर, अपने बच्चे, अपनी सास, अपने पति. The priority becomes that's your world, that's your universe, and then somewhere she loses her own self. And I think it's a discovery of a self-realization for all 3 women in this journey of Saas Bahu Achar. So yeah. So you know why I was waiting to speak last? Because now it's easier for me to explain my character. I am the reason because these 3 women exist. Because if I wouldn't have acted the way I acted, ये story नहीं बनती. So basically ये जो पूरा title है इस series का सास बहू अचार, तो उसमें सास हैं, बहू हैं और मैं हूँ अचार. तीनों ने मिलके मेरा बहुत अचार बनाया है उस कहानी में. So I play this character of Dilip, who was married to Suman and then he gets remarried to Manisha's character. So जैसा तीनों ने explain किया, you take certain decisions in life and then the rest follows. So that's my character. Thank you so much, Anoop, for mentioning कि आप अचार हैं इस कहानी में. तो अमृता, जैसे कि आपने अभी कहा, थोड़ा सा आपने बताया हमें संक्षेप में कि the story is about a housewife, a homemaker, who sort of she wants to get the custody of her children. And in order to get that, she wants to become financially stable. So she walks on the path of entrepreneurship, right? Entrepreneurship, of course, as a concept is on the rise. हम चारों तरफ देख रहे हैं कि entrepreneurs बहुत ज़ोरों से ये concept लोग आगे बढ़ रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि एक महिला के लिए आज के ज़माने में entrepreneurship, right, की राह पे चलना कितना मुश्किल है? क्या-क्या difficulties आ सकती हैं? While things are changing, I would say things are quite challenging too. और अगर आप सुमन का एग्जाम्पल लेंगे, वो तो क्या चीज़, मतलब उसको तो कुछ पता भी नहीं है. क्या चीज़, क्या बोले आप, हैं एंथर, क्या बोल रहे हैं आप, मतलब वहाँ से वो आती है. मतलब कुछ तो औरतें ऐसी हैं जो लाइक हु आर एम्बिशियस. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कंपेयर अमृता विथ सुमन, सो आई हैव बीन एम्बिशियस कि नहीं मुझे ये कुछ कर दिखाना है, बट सुमन हैड नो सच प्लान्स इन हर लाइफ. शी वांटेड नथिंग. शी जस्ट वांटेड हर हस्बैंड एंड फैमिली. सो फॉर दैट वुमन इट्स मोर डिफिकल्ट बिकॉज विजन ही नहीं है. So she starts from somewhere minus, that kind of a thing. कि जैसे आपने अगर सीरीज देखी हो, उसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है. इवन आम वाला जो आम बेच रहा है, क्या है, चलो आगे चलो, क्या है, मतलब नो वन इज टॉकिंग टू हर प्रॉपरली. सब लोग उसको वेट करा रहे हैं. सो मतलब बिल्कुल सेल्फ एस्टीम ना होना, ये मुझे लगता है औरतों के लिए ज़्यादा होता है. सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ही ना होना, बिकॉज सुमन खुद भी कहती है कि हमें तो किसी ने सिखाया नहीं ना भाई कि ऐसा भी दिन आएगा ज़िंदगी में. हमें तो बस सिखाया था कि पति की सेवा करना है, सब ठीक हो जाएगा. तो उसमें सेल्फ एस्टीम की बात ही कहाँ से आती है भाई? एस्टीम तो पूरा उनका ही है, हम तो है ही नहीं ना. हमारा पूरा अस्तित्व ही उनके लिए अगर है, तो अगर वो जब चले जाएंगे तो हमें क्या करना है कुछ पता ही नहीं है. और मेजॉरिटी ऑफ इंडिया लाइक जो औरतें हैं, हम अगर टाउन की बात छोड़े
काफ़ी औरतें ऐसे ही तो जीती हैं, सुमन रिप्रेजेंट्स देम। तो उनके लिए ये दिमाग में ही नहीं है कि मुझे खुद का कुछ बिजनेस करना है, काइंड ऑफ अ थिंग। शी डजंट नो व्हाट टू डू। एक्चुअली तो अंधेरा है सामने। उसके बाद तो वो उनके मदर इन लॉ की वजह से मुझे लगता है कि एक वुमेन पावर नाम की चीज़ होती है, और मुझे वो लगता है कि हर कहीं ये चीज़ वर्क कर रही है। लाइक इफ वी टॉक अबाउट ऑन सेट ऑल्सो, you know, Yamini was supporting me, Anjana was supporting me. We are talking about each other's looks. We are talking about each other's characters. I think that is womanhood supporting each other. जो स्टोरी में हो रहा था वो भी सेट पे हो रहा था, और वो भी मुझे आसपास भी दिखता है होते हुए, लेकिन चैलेंजिंग भी दिखता है। लेकिन औरतों को सीरियसली ना लेना, या मैं काफ़ी जगह देखती हूँ। आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू हैव वर्कड विद मैनी ग्रेट women directors. Sometimes they know how to make their point and they are taken seriously. Like someone like Zoya, you cannot but take her very, very seriously, you know, because she commands the set. She is like that. But I have seen some directors, जैसे मैं एक आपको example दूंगी, मैं नाम नहीं लूँगी because that is complicated, but एक women director के साथ मैंने हाल में काम किया, और वीडियो असिस्ट ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने एक बार ठीक से दिख नहीं रहा है, दूसरी बार तो उन्होंने कहा व्हाई इजंट इट वर्किंग, एंड वो जो वीडियो असिस्ट करने वाला बंदा था वो ही वाज अ मैन, सो ही सेड वो मेरी गलती नहीं है, एंड द वे ही सेड इट, यू नो, शी इज अ डायरेक्टर, आप उनका कोई काम उनका ठीक से नहीं कर रहे हो, एंड ही इज लाइक इट्स नॉट माय फॉल्ट, ओके, एंड I could sense it because she was a woman and she said, why isn't it working properly, yaar? And he's like, hey, you cannot say such a thing to me, you know, I'm a man. So I could just see it there. So while I'm happy that many women directors are telling their stories, they are, you know, gutsy and doing that, many Suman Srivastavs who are getting support from their mother-in-laws, and they are making it big in achar industry. In fact, if you have seen the series, you know, Dilip finds it very difficult. उनका तो business भी वो छीनती है eventually. वो उनको पूछती है कि क्या आप मेरे साथ नौकरी करेंगे? But having said that, I'm watching this happening also. Like realistically speaking, both the things are happening. So while there are positives, there are challenges as well. That's what I would say. थैंक यू। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे यामिनी मैम कि हमने सास बहू की तकरार तो हम देखते आए हैं बहुत सालों से, बट सास बहू का प्यार हमने पहली बार देखा आपके प्यारे से शो में, और बहुत पावरफुल शो में। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगी हमें अबाउट विमेनहुड, यू नो, जो अमृता ने बताया दैट इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। Women have supported each other always. That's what I have seen in my life. So, like my mother, she took charge of the family when my father died and I was 11. And she supported 6 children, all on her own. She raised us, and not only us, wherever she saw women struggling, because I remember we had a tenant, and he never used to give a lot of money to his wife. I just remembered it. And my mother encouraged her to learn. She made her learn that वो जो स्वेटर बनाने की एक मशीन आती थी, तो she made her learn that. And in our house only, that woman started making sweaters for आस-पड़ोस का सब चीज़ दुकानों पे गई. So women, and she ultimately she started earning her own money, and that is one example in my mother's life, right? So it's not like I see everybody talking about women empowerment, but it's been there. It's nothing new. Right, so I'm very sure if my mother was there, there were other women also supporting other women who were downtrodden, didn't know what to do with their life, they were not educated. So it's always been there. The only thing is that in our films and unfortunately television, everybody has shown only one aspect of a relationship. You know, so there are brothers who don't get along with their brothers. Siblings fight all the time. But there are siblings who take care of each other. So there are mothers and daughters-in-law who don't get along because they are two human beings. Okay? And I would say it because I'm a mother-in-law myself. So sometimes mothers are more
possessive about their sons. Daughters have to go out, उनको शादी करनी है, वो दूसरे घर संभालना है, एक मेंटालिटी होती है. पर कई बार माँ अपने आप को वो ना लड़के के साथ डिटैच नहीं कर पाते हैं या शेयर नहीं कर पाते हैं, राइट? तो वो भी रिलेशनशिप्स होती हैं. बट कई बार बहुत सी रिलेशनशिप्स मैंने देखी हैं जहाँ पे मदर्स इन लॉ अपनी डॉटर्स इन लॉ को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे रियलाइज यू आर अ रियल एग्जाम्पल इन रियल एंड रियल लाइफ बोथ, सो वी नो दैट. थैंक यू. So ultimately, I'm not going to be there in my son's life all his life. You know, I'll be gone one day. So I need to set up something for him, a family for him, a woman who will take care of him. So there are women of all sorts, there are relationships of all sorts. So it's not like this is existing in one serial only. It's not that. It's not been shown. That's all. Thank you very much, Yamini ji. Very beautiful response. अनूप, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा हमने डिस्कस किया कि ये जो कहानी है वो सास बहू और अचार के बारे में है. सो यू प्ले अ रोल वे यू आर सराउंडेड बाय 3 women, सो मदर एंड 2 wives, ex and present, right? So how difficult or easy was this, as an actor to sort of play this layered role, right? I would say it was a multi-layered role for you because आप अलग-अलग 3 महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं. Yeah, actually, the reason I said yes for this show was that it had so many layers. Because there was a point of view of Suman, there was a reason of my mother supporting my first wife, and at the same time, my second wife taking care of kids and kind of understanding Suman's position also. सो एज एन एक्टर इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था ये रोल. लेकिन जब हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलते हैं तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें हम मिस कर देते हैं. तो जब पहला ड्राफ्ट हमने पढ़ा तब बहुत ज़्यादा ये था कि जो दिलीप का कैरेक्टर है विच आई प्लेड, उसका अपना कोई रीजनिंग नहीं था. ही वॉज अ बैड गाय. मतलब एक होता ना, एक वन साइडेड वन ट्रैक कैरेक्टर था. ये तो बुरा आदमी है, इसने बीवी को छोड़ दिया, दूसरी से शादी कर ली और बच्चों का भी ध्यान नहीं रख रहा, ऐसा टाइप का कुछ था. उतना उसका पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन नहीं किया गया था. बट देन वी स्टार्टेड हैविंग डिस्कशंस स्पेशली विद अरुणाब जो TVF के हेड हैं और हमारे डायरेक्टर अपूर्वा और जो राइटर्स की टीम थी. तब मैंने एक लॉजिक दिया था. मैंने कहा था कि देखिए, कोई भी इंसान, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, ग्रे शेड्स हर किसी इंसान में होते हैं. बिकॉज देयर मस्ट बी अ रीज़न कि अगर एक इंसान, दिलीप जो किरदार है ये, वो अगर किसी रीज़न से सुमन से अलग होता है, बट एट द सेम टाइम ही अग्रीज टू कीप द किड्स ऑल्सो. देयर इज अनदर वुमन हु इज रेडी टू मैरी दिस मैन इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि यार इसका तो बड़ा एक बीवी है, 2 बड़े बड़े बच्चे भी हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है. बट इफ दैट वुमन इज रेडी टू कम इन टू हिज लाइफ in spite of that complicated situation, तो कुछ तो अच्छा होगा इस इंसान में. Why is she putting herself in that situation जहाँ पे वो already एक complicated life से आई है और फिर अपने आप को एक complicated life में डाल रही है? Love is blind. No, but still I would say that कि थोड़ा तो rational होकर आदमी सोचता है. तो इस पॉइंट पे डिस्कशन शुरू हुआ और फिर हमने थोड़ा सा दिलीप के किरदार को उस पॉइंट से भी देखना शुरू किया कि यार सिर्फ विलन बना देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि किसी को हीरो बनाने के लिए हमें दूसरे को विलन बनाने की जरूरत नहीं है. सो वो बैलेंस जो था वो स्क्रिप्ट में धीरे धीरे आया. और अब जब हम देखते हैं दिलीप का कैरेक्टर तो वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन कैरेक्टर लगता है कि हाँ ठीक है यार. और देयर इज अ सीक्वेंस बिटवीन मी एंड सुमन ऑल्सो इन द एंड व्हेन शी इज वेरी वेरी सक्सेसफुल. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो बिजनेस सुमन के किरदार ने शुरू किया, मैं उसी बिजनेस में नौकरी करता हूँ. सो इट इज़ नॉट ओनली दैट शी इज़ काइंड ऑफ अफेक्टिंग द होल सिनेरियो कि वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन बन चुकी हैं. शी इज़ हार्मिंग माई जॉब ऑल्सो. माई जॉब इज़ ऑल्सो एट रिस्क नाउ. तो उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका था कि यार मेरी माँ इसमें मदद कर रही है. मतलब शी डिडंट इवन थिंक वंस कि मेरी नौकरी जा सकती है. तो जब एंड में वो बातचीत होती है
तो वो कहता है कि यार मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाया, क्या यही मेरी गलती है क्या? सो आई थिंक दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड कि ठीक है यार, सिचुएशंस होती हैं ज़िंदगी में। तो मज़ा बहुत आया इस रोल को प्ले करने में। थैंक यू वेरी मच। अंजना, जैसा हम बात कर रहे थे ऑफ स्टेज, राइट, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे हाईलाइट किया, द अदर वुमन, जैसा कि अनूप ने अभी कहा, राइट। तो हम जब भी कोई सीरीज़ या शो या टीवी या कुछ भी सिनेमा में हम कभी भी देखते आए हैं तो हमेशा अदर वुमन एक वैम्प होती है, राइट। बट इस शो में हमने एक बहुत ही अलग शेड देखा अदर वुमन का। मतलब मैं जब देख रही थी तो मेरी मम्मी कहती हैं कि अच्छा अदर वुमन, जैसे ही पता चला कि वो तो अच्छी है, कहती है अरे ये तो अच्छी है, राइट। तो एज व्यूअर्स, यू नो, वी वर प्रीटी शॉक्ड टू सी दिस सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर वुमन। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? यू नो, आई थिंक जो दो बड़े मिथ्स, स्टीरियोटाइप जो सास बहू अचार ने ब्रेक किए हैं थ्रू अ मैसेज, थ्रू अ स्टोरी, इज ए कि सास और बहू का रिश्ता कभी माँ बेटी जैसा नहीं हो सकता, which has completely turned another leaf where you see Amrita and Yamanji's character. मुझे honestly even while during the show मुझे लगता था ये उनकी माँ है, उनकी सास है, the way she is supporting her, मतलब वो आप अपने बेटे को छोड़कर अपनी बहू पे इतना विश्वास, इतना प्यार, it was amazing to see that magical, you know, relationship between them. The second myth of course कि हमेशा हम लोगों ने देखा ही है, ये फेड किया गया है हमारे बचपन से सिस्टम में कि जो सौतेली माँ होती है वो शी इज़ अ टोटल बिच, एंड आई थिंक ब्रेकिंग दैट स्टीरियोटाइप was so important because when you want to change the narrative in the society, you have to change what you are saying, how you are showing things, and like we discussed earlier that we all have a certain amount of gray in our character. None of us are black or white. And I feel कहीं एक subconscious level पे मनीषा का character, it could also be a very selfish reason to, you know, because she knows कि she is also coming with a certain baggage. She also has a small child she's bringing into this house. और ऐसा होता है जब when you want to be treated in a certain way, you also have to treat in a certain way. तो जब वो अपने बच्चे के साथ इस घर में आई है और वो चाहती है कि उसके बच्चे को भी अपनाया जाए इस घर में, then it becomes imperative that she also treats the children of this house equally with that much love and respect. So somewhere I feel, other than on the surface, and yes, Manisha is a nice person because she's open to accepting whatever is happening in this house and also being humiliated at times, but still the fact that there is a certain motive behind somewhere saying that कि ये तो जो अच्छा है वो अच्छा है ही, पर कुछ मेरा भी अपना एक सेल्फिश रीज़न है जिसके वजह से मैं, यू नो, आई एम मे बी नाइस और नाइसर रादर. थैंक यू. तो इस मैंने जैसा कि कहा कि यू नो बहुत ही शक्तिशाली शो है और इसमें कई सारे बहुत ही बढ़िया और इम्पैक्टफुल सीन्स हैं, राइट? तो आपका कौन सा, अमृता, आपका फेवरेट सीन कौन सा इसमें है? अभी अनूप ने जो जिक्र किया वो एक सीन है लास्ट में बिटवीन दिलीप एंड सुमन, जहाँ पर वो दोनों ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब कैरेक्टर्स अपने नेगेटिविटी से बियॉन्ड जाते हैं ना, तब वो सीन्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं निभाने के लिए भी. जैसे यार इनमें बहुत बिटरनेस है, राइट? हस्बैंड और वाइफ में बहुत बिटरनेस है और हम लगातार हमने वो दिखाई है. टू बी फ्रैंक, यामिनी दी के साथ जो सीन्स थे वो करते हुए हम बहुत हंसे. इट वॉज वेरी फन. विथ अनूप इट हैज़ बिन, मतलब पहले तो बहुत वो जो स्ट्रेस दिखाना था, इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मी मोर. मतलब पहला भी जो सीन है जब वो मेरे घर आते हैं, यू नो, एंड अपू हैज़ ट्रीटेड इट, अपूर्वा सिंह करके हमारे निर्देशक, वो हमेशा दूर दूर है एक दूसरे से, लेकिन कभी कभार तो एक रिश्ता था यार. 2 बच्चे हमने एक दूसरे के साथ ये किए हैं पैदा. तो मतलब जो प्यार, और प्यार उनका मेरे प्रति नहीं था, मेरा तो था. सो दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप जिसमें वो मुझे कहते कि मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ, ये मेरी गलती तो नहीं हो सकती. दैट सीन आई एम टॉकिंग अबाउट, विच इज़ माई फेवरेट बिकॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू पोर्ट्रे. तो लेकिन मुझे आपसे प्यार था, आपको मुझसे नहीं हुआ है, वो मुझे एक्सेप्ट करना है विदाउट बिटरनेस. तो मतलब ये एज ह्यूमन बीइंग ऑल्सो मुझे लगा कि यार सुमन के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें करनी है उस एक मोमेंट में उसे,
और आई एम वेरी थैंकफुल टू अनूप कि उन्होंने जिस तरह से वो लाइन भी वो हम ये किया है ना कि भाई इतना जेन्यूनिटी था ना उसमें, अब मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ, ये मेरी गलती तो नहीं हो सकती ना सुमन, मतलब उसमें इतनी जेन्यूनिटी थी कि मैं ना, कई बार ऐसे होता है ना कि एक रिलेशनशिप में आप, मतलब मैं एक हद के लिए मैं भूल गई कि सुमन हूँ, सुमन भी भूल गई कि यार मैं इनकी बीवी हूँ, और उनको ना दिलीप का दुख समझ में आ गया। और ऐसे होना चाहिए रिलेशनशिप्स में, वी शुड बी एबल टू फॉरगेट, क्योंकि सिर्फ आप अगर उसको हस्बैंड के हैसियत से देखोगे सिर्फ बिटरनेस ही दिखाई देगी, लेकिन उस एक क्षण के लिए सुमन को भी दिखाई दिया यार मैंने इससे प्यार किया, इससे नहीं हुआ भाई प्यार, क्या करेगा वो इंसान, जेन्युइनली बता रहा है नहीं हुआ है प्यार। लेकिन एक बात ये एक्सेप्ट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो वो जो करना था, और उसी सीन में वो चाबी वापस देती है घर की। तो एक औरत के लिए उसके रसोई का एक चम्मच भी बहुत मायने रखता है और स्पेशली वुमन लाइक सुमन जिसने वो रसोई सजाई थी, ऐसी वाली वुमन, मतलब अगर मैं हूँ तो मैं तो रसोई में जाती नहीं हूँ, मैं तो ज़्यादातर काम में रहती हूँ, लेकिन सुमन के लिए वो चाबी वापस देना इज़ अ बिग हिस्सा ऑफ हर लाइफ सैक्रिफाइसिंग कि ओके दिस इज़ नाउ एंडेड, दिस इज़ द एंड ऑफ इट। तो ये सीन मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग था निभाने के लिए। और इसके पहले वाला जब मेरी बेटी कहती है कि उसे उसकी माँ अलग दूसरी वाली माँ के साथ रहना है, वो सीन क्यों चैलेंजिंग था, क्योंकि सेम थिंग वहाँ पे वो मेरी बेटी है, इसको मुझे नज़रअंदाज करके एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से मुझे देखना है कि उसकी अच्छाई किस में है, वो अगर उसके साथ रहेगी तो उसमें उसकी अच्छाई है। तो जैसे अभी नमनी कह रही थी कि माएँ बहुत पॉजिटिव होती है अपने बच्चों के लिए, मुझे कई माँओं ने बताया वो सीन आपने कैसे निभाया कि आप अपनी बेटी को कैसे जाने दिया आपने दूसरी माँ के साथ। तो मैंने कहा क्योंकि एक अच्छी माँ वही है जिसको पता है कि उस बेटी की अच्छाई कहाँ पे है, ना कि वो बेटी मेरे साथ रहे, यू नो। सो मुझे पता है कि मनीषा इज़ मोर यू नो पढ़ी लिखी है, सुमन पढ़ी लिखी नहीं, तो उसको लगता है कि नहीं उसको ज़्यादा एक्सपोजर शायद उसके साथ मिलेगा, यू नो। और ज़्यादा संस्कार, जैसे वो मार नहीं खाती है ना, जब मेरी बच्ची को मेरा पति मारता है तो मनीषा स्लैप्स हिम बैक। सो ये सब कुछ मैंने तो मार खाया है पति का, शी डज समथिंग एल्स। सो दूसरी मेरी सौत को भी सुमन अलग तरह से देखती है और अपनी बेटी को जाने देती है। तो इन दोनों सीन्स में सुमन अपने बिटरनेस से बहुत बियॉन्ड जा पाती है, और इसीलिए मुझे ये दोनों सीन्स करने के लिए बहुत मज़ा आया। यामिनी मैम, आपका कौन सा सीन है जो फेवरेट? तीनों के साथ बहुत स्पेशल सीन्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो अमृता के साथ जब हम मंदिर में बैठे हैं और उस वक्त शूटिंग के टाइम पे भी वो जो लाइन है कि कुछ नहीं होता बोलने से कि सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ जो गलत हो रहा है वो भी थोड़ा कम गलत लगने लगता है। वो लाइन हम जब कर रहे थे तो अगर उस टाइम पे अपूर्व कट नहीं बोलता तो मेरी हालत ख़राब हो जाती वहाँ पे। तो वो बड़े सही टाइम पे उसने कट बोला, क्योंकि वो मैं पढ़ रही थी जब, तब भी मेरे को बहुत और ये चीज़ ऐसी है कि वो मैं एक्चुअली मेरी मदर से मैंने सीखा है कि जब हम लोग बच्चे थे और फाइनेंशियल बहुत ट्रबल थी कि अर्निंग, मम्मी को मैं बोलती थी मम्मी अब क्या होगा, मतलब 25 तारीख को तनख्वाह ख़त्म हो गई है तो अब क्या होगा, और मम्मी बोलती थी अच्छा होगा भगवान ले। तो उस पर्सनल वजह से भी कि मम्मी अक्सर बोलती थी कि सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और अनूप जी के साथ जब वो कॉन्फ्रंटेशन है जहाँ पे बेटे की बैक है और वो समझ रही है कि कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया, उस सीन के बाद तो मेरा टोटल ब्रेकडाउन ही हो गया था थोड़ी देर के लिए। और अंजना के साथ जो सीन था हमारा कि फाइनली द मदर इन लॉ एक्सेप्ट्स कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, वो सीन उसी वक्त लिखा गया था और उसी वक्त हम दोनों ने रिहर्सल करके डायलॉग्स करके हमने किया था। और काफ़ी मुश्किल हो रही थी मुझे जब अंजना अपने डायलॉग बोल रही थी, तो अपने आप को संभाल के रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। और एक वो जब वो बच्चे को छोड़ती है और वो जो पूरा सीक्वेंस है वो मैं एक्चुअली देख नहीं पाती हूँ मेरा जब रोने का दिल करता है तो मैं वो चला के अभी देखती हूँ। अनूप और अंजना, आपके कौन से सीन्स हैं जो बहुत ही आपके मतलब दिल के करीब हैं? सी एक्चुअली मेरे जो सीन्स अगर आप देखें पूरी सीरीज़ में तो बहुत सारे सीन्स हैं जो मेरे फेवरेट हैं, बिकॉज क्या है मेरे बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स हैं
अगर मैं शुरू से देखूं तो यू नो इवन इन द बिगनिंग ओनली कि जब वो छोटा जो बेटा है, जो मनीषा का बेटा है, उसको वो स्कूल छोड़ने जा रहा है मोटरसाइकिल पे, और वहीं बाहर रोड पर जो सुमन और हमारे 2 बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं किसी रिक्शा के लिए, ई रिक्शा के लिए, एंड ये आके कहता है चलो मैं छोड़ देता हूँ, एंड द डॉटर सेज कि नहीं हम चले जाएंगे, he says कि मैं छोड़ देता हूँ ना, says नहीं हम चले जाएंगे. Both of them are very indifferent towards him. और वहाँ से एक रिक्शा आता है और वो रोकता है, ये दोनों बैठते हैं और ये चुपचाप अपनी जेब से पैसे निकाल के रिक्शे वाले को देता है. सो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सीक्वेंसेस हैं जहाँ मुझे लगा आई थिंक यही मेरे लिए मज़ा था दिलीप को प्ले करने का. मेरे पास कोई बहुत ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं थे जहाँ मैं डायलॉग बाजी कर रहा हूँ या फिर बहुत ही इमोशनल बर्स्ट आउट है मेरा, कुछ नहीं है. लेकिन ये सारे मोमेंट्स इतने खूबसूरत थे, जैसे इन्होंने सुमन ने भी मेंशन किया कि एक सीक्वेंस है जब उसे पता चलता है कि ये सुमन जो अचार का बिजनेस कर रही है उसमें पूरा सपोर्ट जो है वो मेरी अपनी माँ कर रही है, एंड ही स्टार्ट्स थ्रोइंग हर क्लोथ्स, वो पूरी कबर्ड खोल के फेंकना शुरू कर देता है, एंड द डॉटर इज ऑल्सो स्क्रीमिंग कि इनको तो यही है, सबसे लड़ना आता है, ये है वो, एंड ही इज लाइक कि मतलब साला हर आदमी मुझे गाली दिए चला जा रहा है यार, माँ उसको सपोर्ट कर रही है, ये गाली दे रही है, ये भी कुछ इतना अपना इसका डिस्कशन चल रहा है. अब नाउ a 16-18-year-old daughter also is starting lecturing me. मतलब मेरी लाइफ में मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं शायद. And she starts screaming and he slaps her and within seconds she. So ये सारे moments जो है ना मेरे लिए तो मतलब पूरी सीरीज में सारे scenes बहुत अच्छे थे. अंजना आपके लिए? For me, it's not a scene, but it's actually a moment where जब ऋषभ घर से भाग जाता है और जब वो उसके रूम में जाती है, एंड जस्ट द फीलिंग कि अगर मेरा अपना बच्चा भाग गया होता तो हाउ इट वुड हैव किल्ड मी इनसाइड टू नॉट नो इफ माई चाइल्ड इज सेफ, इफ ही इज ओके, इफ समथिंग्स हैपन टू हिम, ही इज रन अवे, ही इज अ 8-year-old बॉय, ऋषु हु प्लेज द कैरेक्टर. जब मनीषा उसके रूम में जाती है, just to maybe I don't even know why she goes into that room honestly, but when she goes, it was completely surreal for me because you know she touches his books and she's picking up his trophies and शायद उस बच्चे को कभी celebrate नहीं किया गया. You know, he is a very intelligent child and maybe he was not celebrated that much. And when she goes and she opens his school bag और उसमें से उसकी माँ का hair band निकलता है और उसके खिलौने निकलते हैं, so you know what the child is going through, क्योंकि separation for any child is not easy. हमको लगता है कि हाँ यू नो माँ बाप अलग हो गए तो बच्चे संभल जाते हैं, बट इट लीव्स अ वेरी डीप स्कार ऑन अ चाइल्ड. एंड व्हेन शी सीज हिज स्टफ एंड देन शी सीज वन लेटर एंड ही इज रिटन अ लिटिल कोट सेइंग roses are red, violets are blue, mummy please don't go, I love you. And I think that moment was so overwhelming for me. Maybe it was just maternal instincts, you know, coming out, but just the whole idea of losing that child or not knowing if the child is okay or not was very, very powerful for me. There's another moment which, again, it's a moment and not a scene, is in the end of the 3rd episode, the song starts. And that's a very haunting song. I mean, emotionally, and the point where Amruta's character enters the frame, that look of hers, I'm getting actually goosebumps in saying this, but जब वो एंटर करती हैं और उनकी आँखें, इट्स लिटरली सेइंग कि ये शायद 6 महीना 1 साल पहले ये मेरा घर था, ये मेरे बच्चे थे, ये मेरा पति था, ये मेरी सास थी, एंड नाउ समबडी एल्स हैज टेकन ओवर एंड there's nothing that belongs to me anymore, and she's standing outside and it's raining. So even cinematically it was so beautifully portrayed, musically it was so beautifully portrayed, and then she is par excellence, so what do I say, what she did pure magic. So there are very beautiful moments like that, very difficult to pick up scenes or moments, but these are I think some really, really special moments in the series. जैसा कि यू नो आप सब ने कहा और मैंने भी देखा कि दिस शो ब्रेक्स द स्टीरियोटाइप्स, राइट. ऐसे कई सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जो शो ने ब्रेक किए हैं, इसलिए इतना बहुत ही पावरफुल शो है. तो जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि TVF के साथ काम करके आपको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. जी, TVF आई थिंक TVF लगातार अच्छा कंटेंट लेके आ रहा है. हर OTT पे मुझे लग रहा है. मतलब उनका मैं अनूप जी से भी बात कर रही थी, पंचायत मैंने देखा, मैंने गुल्लक देखा, एस्पिरेंट्स देखा,
कोटा फैक्ट्री एंड इवन सास बहु अचार, नॉट बिकॉज आई लाइक इट्स आवर शो, बट अगर कंटेंट वाइज हम देखें उस शो को, एज यूर ऑल्सो सेइंग, एंड तो कंटेंट, हर कंटेंट इतना आउट ऑफ द बॉक्स है, और काफ़ी स्टीरियोटाइप्स कैरेक्टर्स के भी तोड़े जा रहे हैं. मतलब एज यू आर सेइंग कि सास बहू के बीच का, हम दोनों के बीच का, यू नो द अदर वुमन, वो तो है ही. पर्सनली मेरे बारे में आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लाइफ. मुझे ये बात Z5 से भी पता चली, मुझे ये बात TVF से भी पता चली कि एक ये भी स्टीरियोटाइप होता है कि सपोर्टिंग एक्ट्रेस कभी प्रोटोगनिस्ट नहीं बन सकती. सो या तो मुझे ये बताया गया था कि मतलब दे हैड many people were very apprehensive about my name for Suman's character, because they were like नहीं यार वो तो supporting करती आ रही है आज तक, you know, on market wise कैसे जाएगा, which I understand. I'm not hurt because this is at the end of it is it's business, right, and it has to work. मतलब भले आप अच्छे actor हो, but you have to also commercially make the thing viable because it's a business. So I'm grateful to TVF, Arunab, अपूर्व सिंह कर्की एंड ऑफ कोर्स निमिषा पांडे, जो Z5 की हेड ऑफ कंटेंट. यस, ये सारे लोगों ने वो एक स्टीरियोटाइप तोड़ा है, मुझे ऐसे लगा. और मुझे पता है कि उसके लिए उनको कई बार ये बात बतानी पड़ी कि नो इट्स ओके, यू नो इट विल वर्क, बिकॉज बिफोर यू डू इट यू डोंट नो वेदर इट विल वर्क और नॉट. सो मुझे लगता है ये हर वुमन एक्टर के लिए मुझे लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए कि उनके लिए स्टीरियोटाइप्स नहीं बनने चाहिए. तो मुझे जब मैं यंगर थी तब भी मुझे लगता था कि एक ज़माना था जब वुमेन का एक स्टीरियोटाइप था कि एक एज के बाद आपको ऐसे ही रोल करने हैं. एंड व्हेन आई डिड गली बॉय, मुझे लगा, सारे लोग मुझे बोले थे कि क्या आप उस स्टीरियोटाइप में जा रही हैं, पर मुझे लगता है इट्स वेरी नाइस दैट हर तरह के स्टीरियोटाइप्स विमेन एक्टर्स के लिए इंडिया में तोड़े जा रहे हैं. सास बहू इज़ अ गुड एग्जाम्पल कि वो एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है 40+ औरत की, यू नो. सो एक स्टीरियोटाइप ब्रेक हो रहा है. गली बॉय जैसी स्टोरी थी जिसमें एक 40+ औरत सीडक्ट्रेस थी, यू नो. सो हर तरह के स्टीरियोटाइप्स ब्रेक हो रहे हैं. मैंने सेक्रेड गेम्स 2 जैसा शो था जिसमें एक मेल कैरेक्टर को फीमेल बनाया गया था, यू नो, जो था कुसुम देवी यादव. सो आई थिंक आई एम हैप्पी कि ये बिगर लेवल पे जो वुमेन एक्टर्स के लिए हो रहा है. दिल्ली क्राइम होगा, काफ़ी शोज़ है जो जहाँ पे यहाँ पे 3 वुमेन प्रोटोगनिस्ट लीड कर रही है इस शो को. सो विच इज़ गुड, विच इज़ नाइस कि एक एज के बाद जैसे मर्दों को अच्छे रोल्स मिल सकते हैं वैसे औरतों को भी अच्छे रोल्स अब मिलने की सिचुएशन इंडिया में आ गई है. बिकॉज नहीं तो मुझे लगता था यार मेरिल स्ट्रिप के लिए जैसे रोल्स लिखे जाते हैं वहाँ पे क्या हमें यहाँ पे, बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ OTT एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट. एंड आई एम हैप्पी TVF इज़ एडिंग सो मच टू दैट. उनके हर शो के किरदार देखिए आप, विमेन कैरेक्टर, इवन गुल्लक का देखिए आप, यू नो, इट्स, या फिर नीना जी का कैरेक्टर देखिए आप पंचायत में. इट्स अमेजिंग कैरेक्टर्स, वुमेन कैरेक्टर्स आर बीइंग क्रिएटेड एंड इट्स ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट. यामिनी मैम, मैंने भी उनके बहुत से शोज़ देखे हुए हैं, हमेशा से देखती आ रही हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा रहा. आई मेट दिस वंडरफुल पीपल, अपूर्वा, अर्नव, एवरीबडी. और मैं क्योंकि सीधा किचन से मैं सेट पे आ गई हूँ तो मेरे लिए तो सब चीज़ बस वंडर है, मैजिक है. अनूप आप बताइए. मैं तो TVF के शोज़ देखकर उनके पीछे पड़ा हुआ था कि मेरे साथ कब काम करोगे. और अपूर्वा से पहले मैं अरुणाब से कई बार मिल चुका था, हम बातचीत करते थे. तो जैसा अभी अपना अमृता ने कहा कि प्रोटैगनिस्ट, तो मैं अर्नब से ही कहता था यार मुझे कोई एक मेन प्रोटैगनिस्ट में लेकर लिखो यार, कुछ स्क्रिप्ट लिखो यार. एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू बी, हाँ सर, अनूप सर आपके साथ काम करना है. और फिर जब मैंने एस्पिरेंट देखा, फिर मैं अपूर्वा से मिला, फिर मैंने दोबारा नॉक करना शुरू किया. मैंने कहा यार कब कर रहे हो तुम? तो देन दे सेड सर एक स्क्रिप्ट है. मैंने कहा अच्छा मैं मेन प्रोटैगनिस्ट हूँ. दे सेड नहीं आप पढ़ लो. दे डिडंट टेल मी एनीथिंग, सर आप पढ़ लो. तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे स्क्रिप्ट डेफिनेटली बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा यार ये सारी कहानी तो सुमन के पॉइंट ऑफ व्यू से है यार. कहते हैं एक बार और पढ़ लो. फिर मैंने दोबारा पढ़ी और फिर दे सेड कि आप अपने कुछ पॉइंटर्स देना चाहेंगे, अपना फीडबैक स्क्रिप्ट पे. तो मैंने मिल के डिस्कशन किया. मैंने कहा हाँ यार ये रोल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर इसमें ऐसा कुछ हो, इसका पॉइंट ऑफ व्यू. और फिर धीरे धीरे स्क्रिप्ट बनी
एंड आई सेड मैं अब इंतजार नहीं कर सकता कि TVF के साथ काम करने के लिए जब कोई ऐसा मेन प्रोटैगनिस्ट वाला, आई सेड ये कर लो, रोल बहुत अच्छा है. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो आई डिड दिस शो एंड गेट टू वर्क विद अमृता, यामिनी जी, अंजना, हम और बहुत मज़ा आया. मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू जी, अपूर्वा, अरुणाब, और आई एम श्योर अब अरुणाब सुन रहा है तो कुछ लिख देगा मेन प्रोटैगनिस्ट मेरे लिए भी कुछ मेल एम्पावरमेंट वाला, क्योंकि ये जिस तरह से विमेन एम्पावरमेंट होती जा रही है, मुझे लग रहा है कि अब जरूरत है कि मेल एम्पावरमेंट वाले शोज भी लिखे जाएं. तो ये जो ताली भी बजा रहे हैं ऑडियंस में, वो सब मेल एम्पावरमेंट पे बजा रहे हैं. क्या बात है. तो होपफुली नेक्स्ट ईयर हम इसके नेक्स्ट सेशन में हम एम्पावरमेंट की बात करेंगे, उस पर डिस्कशन कर रहे होंगे. You know, sorry, this is out of context, but when we are talking about empowerment and we are talking about women empowerment, I just feel that women have always been very powerful. Unfortunately, we wait for a tragedy to find that strength to talk about empowerment. And that is like so not fair कि why do we wait कि कोई हमारी लाइफ में ऐसा इशू आए और तब हम वो स्ट्रेंथ बिल्ड करें और तब हम empowered हो जाएं. So we don't have to wait for those things to happen. Right from where a girl child is born, it is so important to tell her how powerful she is. And all that she can achieve, her brother, her father can achieve, she can achieve too. So let's not wait for a tragedy or an issue or a family dispute to tell us that we are empowered. You know, we are empowered any which ways. So I feel that is like such an important point here. The other part was TVF. Well, Arunab and I go back a long way. We were in school together. So, but unfortunately, we never really got to work together for a very long time. Maybe for whatever reasons, things didn't work out. And I have been a huge fan of content-wise. It's hardly anybody who can beat them literally when it comes to strong content, tighter budgets, delivery, the agency of the content that they produce, and it's varied. Like if you pick up any of the shows of TVF, whether it is again Panchayat or Gullak or Kota Factory or Aspirants or Ye Meri Family, and they are gems in their own. And there is no way as an actor ki we are very selfish people. We want to portray everything. We want to play everything, whether negative, positive, happy, sad, disabled, anything. And when you get opportunities like that, where you know people are creating opportunities in a very different way for actors, then you just want to jump on that, wagon and say, I want to do this. So when, Saas Bahu Achar happened, there was a lot of back and forth, and I'm sure that there were a lot of, people in line to play, because even Manisha's character for that matter. And I'm just fortunate that they finally said yes to me and it wasn't somebody else, because for me it has been a game changer. And I've waited long for this game-changing aspect of my career, so yes. जाने से पहले कहना चाहूँगी और आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि यहाँ बैठे जितने लोग हैं, अगर आप लोगों ने ये शो नहीं देखा है, सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड, तो प्लीज़ देखिए. बहुत शक्तिशाली शो है, बहुत बढ़िया शो है. हमारे कलाकार, किरदार, स्टोरी सब नंबर 1 है. ये स्ट्रीम कर रहा है ZEE5 पे, तो ज़रूर देखिएगा. अ वेरी बिग थैंक यू टू द कास्ट ऑफ सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड. थैंक यू सो मच. सिद्धार्थ लायक, द फाउंडर ऑफ IWM बस, एंड टू द एंटायर IWM बस टीम. थोड़ा जोर से तालियां बजाइए ऑडियंस. थैंक यू. धन्यवाद सो मच. आनी चाहिए तालियों की गूंज और जोर से आनी चाहिए. प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, give away the mementos for this one, may I please welcome Franklin Toscano, founder, CTO, IWM Buzz Media, for the same. Cheers to everything nice that women bring in our lives, all the lovely and positive contributions.